making to China is that China has to take an initiative in creating trust, in generating trust in India, that China really means business with India. If China wants an adversarial relationship with India, then that is also fine. But if China wants normalization, that the ball is in China's court to clearly articulate a response which creates some amount of confidence in India that China wants this to move in a positive direction. So China will have to enhance that trust in some way. China will have to demonstrate that what it is doing can be verified on the ground, and something that China does on the border issue that is going to be pivotal in this resetting of this relationship. So I think we have now, we are now at an inflection point in Sino-Indian relations. Unless China does something dramatic, and not negative dramatic, but positive dramatic, I think the relations might be might be going downhill for a long time without anything to stabilize them. As we have seen, India is now responding in multiple ways. India has multiple vectors to respond. We have economic vector, we have global discourse that we were talking about, mobilizing global opinion. We also can, prevent China from entering into certain markets, certain technological sectors where China is very keen to enter. And the loss would be China's. After all, India is such a huge market. At the end of the day, when markets are collapsing across the world, China needs to realize that for its own economic growth, it also needs India. I mean, India, it's not that India will not bear some costs, but India is willing to bear those costs today because Chinese activities have created the sense in India that India needs to stand up first. So clearly now India has put the ball in Chinese court. Indian foreign minister has told very categorically that this is going to have a major impact on bilateral relationship. And so China now needs to take first steps and create or try to create an environment where trust can be generated, where some positive movement can happen in this relationship. And it is not simply about Galvan Valley, it is about the larger trajectory of Sino-Indian relationship, larger question of boundary. The whole question has been appended, the whole assumption has been appended that you can continue to deal with the boundary question even as you develop your ties elsewhere. I think that's not going to happen anytime soon. डॉक्टर पंत, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत ने दो तरफा वार किया है चीन पर, आर्थिक मोर्चे पर भी और सामरिक मोर्चे पर भी कहीं ना कहीं चीन को पीछे हटना ही पड़ा है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें अगर हम, तो कहा जाता है कि चीन की अर्थव्यवस्था बड़ी मजबूत है और भारत के साथ आर्थिक संबंधों की बात करें तो चीन के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आपको क्या लगता है, जबकि सामरिक मोर्चे पर कहीं ना कहीं चीन थोड़ा सा लड़खड़ा गया है और भारत की रणनीति उस पर हावी हो रही है, तो आर्थिक मोर्चे पर चीन क्या और आक्रामक हो सकता है? देखिए, चीन की आर्थिक व्यवस्था मुझे लगता है उतनी मजबूत नहीं है जितनी बाहर से नजर आती है। चीन के अंदर बहुत परेशानियां चल रही हैं और चीन के अंदर वो जो परेशानियां चल रही हैं जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, उन परेशानियों का असर शी जिनपिंग की लीडरशिप पर आ रहा है। तो कहीं पर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न चीन में आया है, और ये डाउनटर्न आज का नहीं, पिछले 2 साल से चल रहा है और कोरोना वायरस ने इसको और एक्सेलरेट कर दिया है, तो कहीं पर वो जो डाउनटर्न है उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि चीन बहुत आक्रामक अपनी विदेश नीति में होता जा रहा है। जहां तक भारत और चीन के आर्थिक संबंधों का सवाल है, देखिए ये बात सही है कि अगर भारत और चीन के संबंध बिल्कुल आर्थिक दिशा में खत्म हो जाते हैं तो भारत को भी नुकसान होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ भारत का होगा, चीन को भी बहुत नुकसान होगा, क्योंकि आज चीन के पास मार्केट्स नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें तो डिमांड कहीं नहीं है। जो यूरोपियन मार्केट हुआ करता था, वेस्ट में मार्केट्स हुआ करते थे, वो सारे मार्केट्स कोलैप्स कर गए हैं। उन मार्केट्स को आपको भरपाई करने के लिए आपको और मार्केट्स चाहिए, और वैसे भी वो मार्केट्स क्लोज हो रहे हैं चीन के लिए। अमेरिका बंद कर रहा है अपने मार्केट्स, यूरोप बंद कर रहा है अपने मार्केट्स। तो हम देख रहे हैं कि एक तरह का मूवमेंट चल रहा है चीन के खिलाफ। तो अगर भारत ने जिस तरह के कदम उठाए, भारत ने बहुत सोच समझ कर कदम उठाए, एक ग्रेडेड कदम है। हमने ये नहीं कहा कि हम आपसे सारा संबंध, आर्थिक संबंध खत्म कर रहे हैं, पर हम आपको, भारत चीन को आगाह कर रहा है कि अगर चीन ने अपना व्यवहार नहीं बदला तो हम ऐसे और कड़े कदम उठा सकते हैं, जैसे हम धीरे धीरे उठा रहे हैं। जैसे हमने टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स में उनको हम नहीं आने दे रहे हैं, हम कुछ हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में चीन के कंपनीज का टेंडर नहीं आने देंगे। हमने कुछ टेंडर्स उनके ऑलरेडी कैंसिल कर दिए हैं, फिर हमने उनके ऐप्स बैन कर दिए हैं। तो कहीं पर चीन को ये बताया जा रहा है कि उसके सामने की जो समस्या है, उसके सामने जो आर्थिक समस्या है, उससे उसको निजात, उससे उसको फायदा नहीं मिल सकता जब तक भारत जो है अपनी आर्थिक रणनीति पर अडिग रहेगा। तो कहीं पर भारत ने जो अपना पक्ष है वो स्पष्ट तरीके से रखा है, और भारत धीरे धीरे इस चीन को ये संकेत दे रहा है कि भारत इसको एस्केलेट करने के लिए तैयार है। अगर चीन स्टेटस को एंटी पर नहीं जाता है, अगर चीन वापस से उस दिशा में नहीं जाता है जहां पर भारत चीन संबंध
कि बेहतरी की दिशा में बढ़ने की संभावना बनती है। तो जो हम आर्थिक संबंधों की आप बात कर रही हैं, उसमें भारत को नुकसान जरूर थोड़ा बहुत होगा, लेकिन चीन को भी नुकसान होगा, और चीन को ज्यादा नुकसान इस मामले में हो सकता है क्योंकि ग्लोबल जो मूवमेंट बन रहा है, ग्लोबल जो मूव बन रहा है, उसमें और जगह के भी मार्केट चीन के लिए बंद हो रही हैं। तो अगर भारत भी अपनी मार्केट धीरे धीरे चीन के लिए क्लोज करता है, तो न सिर्फ चीन को अभी नुकसान होगा, बल्कि आने वाले समय में जो स्ट्रेटेजिक फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज हैं, जहां पर चीन अपना दबदबा चाहता था, जहां पर चीन ये चाहता था कि 5G भी हिंदुस्तान में चीन को मिले, और जब 5G में इनिशियली हम, आपको याद होगा, डिस्कशन होते थे, तो चीन हमको धमकी तौर पर देता था कि अगर 5G नहीं होगा, अगर भारत एंट्री में बैन लगाता है चीनी कंपनीज की, तो उससे भारत के और चीन के बायलैटरल रिलेशनशिप पर असर पड़ेगा। तो कहीं पर वो सारे जो आधार हैं, सारे जो आर्ग्यूमेंट है, वो बेबुनियाद हो गए हैं। आज भारत बड़े स्पष्ट तरीके से चीन को मैसेज दे रहा है, और मुझे लगता है ये मैसेज जा रहा है चीन को। इसीलिए आप देखें कि जो आर्थिक कदम उठाए गए हैं, इसके बाद चीन का जो लहजा था उसमें बदलाव आया है, और चीन ने सिर्फ ये कहा है, एक छोटी सी बात चीन ने कही कि हम चाहते हैं कि आर्थिक संबंधों को हानि ना पहुंचे, और उसके लिए चीन काम कर रहा है। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक और सामरिक दोनों ही संबंध जुड़े हुए हैं, आप इनको डिसएंटेंगल करके नहीं देख सकते। Absolutely. Acha Banerjee, before the Kargil war, there was no round-the-clock deployment of forces in the Kargil Dras sector. But after the war, we saw that how a mountain division was deployed around the year there, through the year it was deployed. Any parallel that you see between then and now? Because see, in Kargil, there was used to be just a brigade. Brigade is around 5,000 men. And Eastern Ladakh, which is starting from Karakoram Pass in the north and ending at Dane Chowk in southeast Ladakh, is around 826 kilometers. So we already have a division out there, a full division, which is much more than a division. I will not give a number of brigades in it, because that will not be appropriate at the moment, because we are deployed. Also, there are other divisions, another division which is based somewhere else. It is also dual task for a summer role of patrolling in Ladakh. So there is no such thing as a lack of men or equipment out there in Eastern Ladakh ever. So because Ladakh was well known that China was attempting to make inroads out there since 1960 onwards. First, 1956 they tried, and they made a claim line. In 1960 they made a claim line. 1962 there was a war, and we have been building up accordingly with China. In case of Kargil, and this should be no comparison whereas deployments are concerned. Because again, I repeat, I cannot say what all was deployed, because that would be inappropriate at the moment, because we are in state of alert at the moment. So, but the numbers were adequate for those 826 kilometers of LAC in Ladakh. More than adequate, I would say. I have visited the LAC in Ladakh at least 5 times in the past 8 years, and I have seen massive developments taking place: infrastructure, military infrastructure, civil infrastructure, and also the ability to hold back PL. आपके पास वक्त कम है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे जाते जाते पूछते हैं कि जिस तरीके से आप सारे परिदृश्य देख रहे हैं, सारी स्थितियां देख रहे हैं आने वाले मौके पर, जबकि अब भारत अपनी सेना में विश्वास भर रहा है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सेना को संबोधित कर रहे हैं, आगे आने वाले में चीन की ओर से आप क्या रणनीतिक उपाय देख सकते हैं या फिर स्ट्रेटजीज देख सकते हैं चीन की तरफ से? ये चीन कोई डेमोक्रेसी नहीं है हमारे पास, वन मैन बॉस है वहाँ शी जिनपिंग। वो उनके पास जो सन 16 में उनको ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो अधिकार माओ के पास वो करते थे या डाओ जिनपिंग के पास वो करते थे सन 50 के दशक। तो उनके पास ऐसे अधिकार हैं आज की डेट में, तो वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो वन मैन थॉट प्रोसेस है उनका शी जिनपिंग का इस टाइम। और 2012 में शी टेक ओवर किए थे चाइनीज प्रीमियरशिप, तब से लेकर अब तक आप देख लीजिए क्या क्या बदलाव हुए हैं, उनकी क्या रणनीतियां हैं, क्या क्या दूसरे मुल्कों के साथ क्या है, और क्या अमेरिका के साथ उनके कैसे रिश्ते, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते कैसे बने और बिगड़े हैं, जापान के साथ क्या उनकी टेंशंस हैं, मंगोलिया जैसे छोटे से मुल्क के साथ में उनका एक तनाव चल रहा है, रूस के साथ कभी ठंडे हैं कभी गर्म हैं, हिंदुस्तान के साथ कहते हैं हम ट्रेड भी करना चाहते हैं और हम लड़ना भी चाहते हैं। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी नहीं हो सकती। ये आज मेरे ख्याल मोदी जी के भाषण में बड़ा स्पष्ट हो गया कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं चल सकती, चीन की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। अब वो क्या करेंगे रणनीति उनकी, देखिए डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी है इस टाइम एलएसी पर, जो हमें बताया जा रहा है वेरियस सोर्सेज से। तो जो उनकी डिप्लॉयमेंट है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि वो अभी तो, जैसे मैं पहले अंग्रेजी में बात करते हुए ये कह रहा था, ये अभी काफी दिन चलेगा, ये रुकने वाला नहीं है अभी काम। ये नहीं है कि चीनी सेना वहां से वापस चली जाएगी कल या परसों या 4 दिनों के बाद, ये लंबा काम मेरे हिसाब से। जी
बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Now, Dr. Pant, you were referring earlier to several decisions that India had taken with regard to, say, barring Chinese companies from investing into MSMEs or road projects, and then the ban that India has imposed on 59 Chinese-linked apps. So, is India using a range of options across domains to impose costs on China, and do you foresee this continuing? Yes, because I think Chinese have been under a false assumption that somehow India lacks options. And I think if you look today, what has been happening gradually over the last few weeks, I would not say that this is simply a question of what happened at the Galvan Valley. Galvan Valley episode has accelerated the process. But go back, if you go back to the post-corona phase in some ways, the last few months, we see a reassessment of the entire logic of economic globalization happening. One of the most interesting remarks that Indian Prime Minister made was that the lesson that India has learned is self-reliance. One of the lessons that the world was learning during the corona crisis, or is still learning, is that over-dependence on China is very bad. So during the COVID crisis, when we saw that we were the pharmacy of the world, and yet we depended on China for imports of critical imports of raw materials. And that is something unsustainable, given that pharmaceutical is a critical strategic industry. So clearly we were moving in a direction where we were trying to wall off China from certain sectors, and that process has gathered momentum, whether you look at the new FDI law, whether you look at Chinese companies being put away from certain tenders, whether you look at how apps are being banned, and how future decisions will be made. It would not be restricted, because we have to respond where our strength lies. Chinese strength may be that they have a huge army, they have a huge military in that sense, and they can project it on the border. But at the end of the day, as Prime Minister said, this is the era of developmental politics. And if India and the world can hurt China where it hurts them the most, which is their developmental prospects, which will create a divide between the ordinary Chinese and the Communist Party, I think that would be the ultimate strike. And that is something that I think India has been working towards in terms of its own messaging is related to that economic elements are there, diplomatic elements are there, military elements of course are there, because we are ramping up our own military and our own modernization, again, as the Prime Minister underscored. But clearly we do not want war, but we are underscoring our intent to escalate on economic matters, on people-to-people ties, on diplomatic relations, on global issues. So, for example, India's voice was heard on Hong Kong yesterday in Human Rights Council. India has called for an independent investigation on coronavirus, which other countries have also called for. So clearly, India is ramping up pressure on multiple fronts, and we would see what happens. I think at the end of the day, Chinese will have to decide how much cost they are willing to bear. But India is ready to bear some of the costs that will come with it, and to stand up to China, because as has been underlined time and time again by the government, that there is no question of buckling under pressure and compromising on sovereignty and territorial integrity of the country. Absolutely. Well, let's go back to the highlights of Prime Minister Narendra Modi's address in Ladakh, where the Prime Minister underlined that modernization on land, air, water and space is directed towards human welfare. He also said that the country is developing modern weapons with the use of modern techniques. Let's listen into that. भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। और इस बीच हमारे संवाददाता अरुण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अरुण, आप पहले भी बता रहे थे, जब जवानों से बात की तो बार बार उनके अदम्य साहस की बात कर रहे थे, उनके परिवारों को भी हौसला दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गलवान घाटी में आपका पराक्रम है।
वो देश ने उस पराक्रम की पराकाष्ठा देखी है। इसके साथ ही आईटीबीपी, बीएसएफ, बीआरओ के जवान की भी उन्होंने सराहना की, उनका हौसला बढ़ाया और साथ ही साथ श्रमिक इंजीनियर की भी तारीफ की कि कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के निर्माण में ये लोग भागीदारी दे रहे हैं। साथ ही जो महिला जवान है पुलिस फोर्स में, जो विमेन ऑफिसर्स हैं, उनकी भी पीठ थपथपाई। एक तरीके से लेह के मंच से पूरे ही भारत को समेट लिया प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल, लेह के मंच से आप यूं कहिए कि सबसे पहली बात तो डायरेक्टली सोल्जर्स से कनेक्ट करना, इमोशनल कनेक्ट करना अपने आप को, वो बहुत जरूरी था इस मौके पर। आप थोड़ा अगर इनको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए रजनी, कि जिन सोल्जर्स ने अपने साथ के 20 जवानों को, अपने दोस्तों को, अपने कुलीग्स को खोया है, ये वो जवान थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, जो कि खुद इंजर्ड हुए थे उस क्लैश के दौरान, जब हमारे 20 जो सपूत थे भारत के, वो शहीद हुए थे। तो ऐसे में डायरेक्टली जब उनसे बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है कि पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। हम कहते हैं अमूमन इस बात को कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। तो आज प्रधानमंत्री मोदी उसी पथ पर गए हैं जहां जिस पथ पर हमारे जो 20 वीर जवान थे, उन्होंने अपने आप को मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। तो मकसद साफ था कि प्रधानमंत्री ने ये मैसेजिंग तो दी है भारतीय जो सोल्जर्स को कि प्राइमरीली आप अकेले नहीं है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है। भारत मॉडर्नाइजेशन कर रहा है अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का, और हर मोड में, चाहे जल हो, नभ हो, थल हो, या तक कि स्पेस हो, भारत अपने दरवाजे खोल रहा है, अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहा है, ताकि कोई भी दूसरा या कोई भी दुश्मन भारत की सरजमीं पर आंख ना उठा सके, हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सके। लेकिन यहाँ चाइना को भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात कही, सेंट्रल थीम यही है कि चाइना को मैसेज है कि अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी से बाज आ जाए। चाइना केवल स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंशनिस्ट मोड में नहीं जा रहा है पूरे रीजन के अंदर, वो इकोनॉमिकली भी आप देखा जाए तो अपने आप को एक्सपेंशन के मोड पे जा रहा है। चाइना आज की तारीख में एक ड्यूअल फेस लेके चलता है। अगर हम इकोनॉमिक एंगल की बात करें तो एक तरफ तो वो इकोनॉमिकली हर जगह अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाह रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी को बेचना चाह रहा है। दूसरी तरफ अगर कोई वहां पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करे या फिर अपनी टेक्नोलॉजी को चाइना में अगर लेकर के जाए तो वहां उसको रोक है। आप देखिए ट्विटर दुनिया भर में यूज होता है, लेकिन चाइना कहता है हम अपना वीवो यूज करेंगे, ट्विटर चाइना की सरजमीं पर काम नहीं कर सकता है। पूरी दुनिया व्हाट्सएप का इस्तेमाल करती है, चाइना में व्हाट्सएप को ब्लॉक करके रखा जाता है, वीचैट का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपना खुद का चाइनीज प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे। ऐसे अब फेसबुक का उन्होंने एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया है। तो भारत ने एक तरह से आईटी यानी साइबर के मोड से भी एक बहुत तगड़ा मैसेज चाइना को दिया है अभी रिसेंटली के 59 चाइनीज ऐप को ब्लॉक किया है। यहाँ पर जो उसका इकोनॉमिक अभियान चलाने की जो चाइना कोशिश कर रहा था वर्षों से कि इकोनॉमिकली हर जगह हर क्षेत्र में वो छा जाए, चाहे इकोनॉमिकली हो चाहे फिर स्ट्रेटेजिकली वो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे में ये चाइना की मंशा को भारत ने बुरी तरह से तोड़ा है। और इसका समर्थन, रजनी एक बार फिर दोहराऊंगा, इसका समर्थन दुनिया भर के लोग भारत को दे रहे हैं। यूएस में भारत के लिए कहा जाता है कि जो ये क्लीन कर रहे हैं, जो क्लीन ऐप करने की जो मुहिम भारत ने की है, इसका वो स्वागत करते हैं। साथ ही साथ यूएस ये भी कहता है कि हुआवे और जेटी, ये जो दो कंपनीज है प्राइमरली जो ये आईटी राउटर्स बनाती है, इक्विपमेंट्स बनाती है, आईटी के हार्डवेयर बनाती है, तो यूएस का कहना है कि चाइना के जो इक्विपमेंट्स है, जेटी की बात कर ले, हुआवे इक्विपमेंट्स की बात कर ले, ये यूएस की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। तो आज जो ड्यूअल फेस है चाइना का, वो दुनिया के सामने एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है कि कैसे खुद एक सिंपैथी कार्ड खेलना शुरू कर देती है जब इन्वेस्टमेंट की वहां बात की जाती है, और दूसरी तरफ अपने आप को एक्सपेंशन करता है, सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है। तो एक तरफ दूसरी कंट्री की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी को थेफ्ट करता है। तो भारत ने देखिए, अब हम इसको रिकाउंट करने की कोशिश करें कि अब भारत के अंदर कोई भी चीनी कंपनी हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए अब इन्वेस्टमेंट के लिए हकदार नहीं होगी, नहीं वो इन्वेस्ट कर सकेगी। ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करके भी इन्वेस्टमेंट कोई भी चाइनीज कंपनी भारत के हाईवे और रोड प्रोजेक्ट्स में नहीं कर पाएगी। चाइना का रथ जो था इकोनॉमिक एक्सपेंशन का, उसको भारत ने रोक दिया है, और एक तरह से भारत ने कड़ा मैसेज दिया है कि स्ट्रेटेजिकली अगर आप ठीक ठाक काम नहीं करते हैं, स्ट्रेटेजिकली अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है, सामरिक तौर पर अगर हमारे संबंध ठीक नहीं है, तो आर्थिक चीजों को आप भूल जाइए। दूसरी चीज, 59 चाइनीज ऐप को जो बैन किया है, रोका है, उसका मकसद साफ है कि हमारे देश के अंदर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनको मौका मिले, वो अपने आप को डेवलप करें, ना कि हम चाइनीज ऐप के ऊपर, चाइना के ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने आप को रिलाई करे। चाइना यहाँ तक आप देखिए इस तरह की कर्तव्य, इस तरह की बातों को करता है कि अपनी करेंसी को खुद डिवैल्यू करता है ताकि उसके एक्सपोर्टर्स को फायदा होता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि चाइना का जो एक्सपेंशन है, जो यूनिलैटरल एक्सपेंशन की वो रणनीति अपना
जाता है, उसको एक तरह से भारत ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अब नहीं चलेगी, जिन लोगों ने अपनाई थी वो कब के बिखर चुके हैं, तो बहुत बड़ा सेंट्रल मैसेज है प्रधानमंत्री की तरफ बिल्कुल से। बिल्कुल अरुण, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अब याचना नहीं रण होगा, और रणनीति जो मजबूत भारत ने दी है, चाइना के सामने पेश की है, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट भरेगी चाइना के भीतर। Absolutely, India is standing up to not just the territorial expansionist tendencies and strategies of China, but also the economic tactics that China has been using. And Ramesh Chandra, our correspondent, is joining us from Leh. Ramesh, we were earlier talking about what the Prime Minister had to say on the building of border infrastructure, but are plans afoot to continue to build border infrastructure up till at least 2022? I understand that 42 strategic India-China border roads projects need to be completed before 2022. Yes, due to COVID, there was a slight delay in the activities, but now the forces of workers from various states like Jharkhand and UP, some places in Bihar, now the workers have come back to Leh Ladakh region, and they have been sent to the forward areas where the developmental or especially the infrastructural developmental activities are taking place. Now they have been screened for COVID-19, and they have been sent to the places, various places across the Ladakh region, especially on the eastern region of Ladakh. And the other thing, now as the Prime Minister kept on saying, change in technology. See, this is the Ladakh region is cold desert, and almost half of the year is, and the surface is covered under snow. In such conditions, there are certain practical issues for the BRO or the agencies that are working for BRO. Now, the BRO is adopting new technologies, and they have seen technologies which can survive these minus temperatures, and excavations like after snow has to be cleared. These things have to be taken care to have a all-weather road and to keep the forces or civilians movement smooth. In fact, Lieutenant General retired Rakesh Sharma is joining us. Lieutenant General Sharma, you know, your thoughts on what really triggered this latest round of coercion in the Galwan Valley that we saw. What has triggered this latest round of belligerence? Because China has been infamous for its expansionist tendencies, but what do you think has been transpiring since May, when tensions ratcheted up between India and China? Yeah, thank you for inviting me. It's a very interesting thought. A lot has been written and a lot has been spoken about why China showed this aggressiveness and belligerence over the last 2 months, not only against India and Eastern Ladakh, but against a large number of nations in its periphery like Vietnam, Malaysia, etc., etc. Now the fact is that, you know, you can ascribe it motivations to what happened to COVID or what's Article 370, etc. I think there is a larger message that China is about giving us and to all the nations, that it has become a superpower. It has arrived to the international scene, and the message is for a long-term vision, a long-term. That's the reason it's simultaneously taken on Japan, Taiwan, and Indonesia, and Philippines, and India. And India, it has come to the border. So it is, it's their feel, it's their inherent desire to tell the world that now we are a superpower. We have achieved the status that we wanted to achieve, and therefore future times will be the same kind of belligerence. And we have to face this belligerence, not today, not for last 2 months, but for long times to come. Absolutely. Dr. Harsh Pant continues to be with us. Dr. Pant, we were talking earlier of the range of options that India is deploying against China and how India is winning support from the international community for this. Well, yesterday we heard Union Information Technology Minister say that India knows how to launch a digital strike, and the MEA spokesperson said that companies investing in India need to follow Indian rules on data security as well as privacy of individual data. Has the banning of the 59 Chinese-linked apps and these statements, are all of this a befitting reply
to what China is infamous for, besides expansionist tendencies as far as territories of other countries are concerned. It's also infamous for phishing attacks, for stealing information, for stealing data, and for various digital attacks on countries, isn't it? Yes, the kind of cyber and information warfare that China is very well known for now is clearly a problem area for India. It's clearly a problem area for the rest of the world. And the cyber security aspect of China's rise has been increasingly talked about. And therefore, when it comes to emerging frontiers of technology, we have to be very cautious as far as China is concerned. So clearly, the message that India is sending to China is that, the old days where there was no reciprocity in the model, that China could expect everything from the other side without giving an inch, without opening its own market, without opening its own industry, without opening its own space for other actors. China used to enter into the spaces of other actors. So clearly that the basic bargain here was very unequal, and that bargain is now under scrutiny. Everywhere it is under scrutiny, and India has made this initial move, which I think was much needed to dispel this notion that China can get its way wherever it wants. And I think in the cyberspace and the technology space, where we are looking at the future of the global economic order, this is going to be a very, very important battle to fight. It is not simply, you're not going to fight it with weapons and bricks and mortar, but you are going to fight it with ideas and with your ability to shape other markets. And here China has played a very, very cunning game. It has been shaping these markets. It has been shaping technological frontiers without ceding an inch. We were just discussing how important, companies like Twitter, Facebook are banned in China, and Chinese, would push other countries to open their markets for their products. And this has created this dichotomy, this imbalance in the system that needs to be rectified. India has made the first move, which is being welcomed across the world, and I hope that other countries follow suit, because the message needs to go out to the Chinese Communist Party that the old ways of doing business are over, and that economically, technologically, the world will also push back, just as it is pushing back diplomatically to Chinese expansionism. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश जी, अगर वर्ष 2020 की बात करें, इस साल भारत और चीन के राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ का ये मौका था, और इस वर्ष को पीपल टू पीपल कनेक्ट के रूप में मनाया जा रहा था। और उसी वक्त पर जो चीन ने सामरिक तौर पर जो अपनी रणनीति बदली है, उससे दोनों ही देशों के जो पिछले संबंधों की बात करें, जिन पर मेहनत की गई थी उनको आगे बढ़ाने में, कहीं ना कहीं उस पर इस रणनीति ने, इस नई रणनीति ने पानी फेरा है। सही कह रही हैं आप। अगर आप देखा जाए तो हमारे 70 साल हुए हैं रिलेशनशिप के, पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां साल शुरू हो रहा है जुलाई के महीने में। उनके 100 साल कंप्लीट होते हैं जुलाई 2021 में, जो वो एक मेजर सेलिब्रेशन के रूप में मानते हैं कि चाइनीज गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक पार्टी पर निर्भर है, कम्युनिस्ट पार्टी पे, और कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल का समय पूरा हो रहा है। और इस 100 साल उनके लिए 100 साल और कम्युनिस्ट पार्टी की स्ट्रेंथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे कि 70 साल की हमारी रिलेशनशिप। और ये जो 100वां साल है, इसमें उनको ये दिखाने की आवश्यकता है कि अब कम्युनिस्ट पार्टी इस लेवल पर पहुंच गई है। और दूसरी बात ये है कि जो पीएलए है, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, उनके जो ऊपर सबसे ऊपर वाली बॉडी है सीएमसी, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसको हेड करता है उनके प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, जो पीएलए के सीएनसी भी हैं, और साथ में ही जनरल सेक्रेटरी है सीसीपी के। तो ये सारा कंट्रोल जो सारा हो रहा है, ये एक बॉडी है जो सीएमसी कर रही है, और सीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। चाहे कि वो एक बोट को गिराते हैं वियतनाम की, या उनके हवाई जहाज जाके ताइवान स्टेट की करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक गेम प्लान दिखाया जा रहा है कि हम 100 साल के बाद हम इस स्ट्रेंथ पे पहुंच गए हैं कि हम किस देश से चाहें उससे भी आंखें लड़ा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये जो बुली है, जो आंखें दिखाने की प्रक्रिया है, उसको उसी आंखें दिखाने की प्रक्रिया से जवाब देना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा धीर छोड़ते हैं जी, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर पंत, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
आर्थिक स्तर पर अगर चीन की रणनीति की बात करें डॉक्टर पंत, चीन ने हमेशा सस्ती तकनीक को अपना हथियार बनाया है। पूरी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपनी जड़ें इसी रूप में फैलाई हैं कि सस्ती तकनीक वो दुनिया को दे सकता है। कहीं ना कहीं भारत ने उसकी इसी जड़ पर प्रहार किया है, चीनी ऐप्स को कहीं ना कहीं बैन करके। और अब जब कल सेना के भीतर भी कुछ ऐसी खरीद हुई है जिसकी हमने बात की है, जिसमें इंडिजीनियस टेक्निक्स को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत में बनी तकनीकों को बढ़ावा दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वहां से भी चीन की तरफ संदेश जा रहा है कि जो सस्ती तकनीक का वो जाल पूरी दुनिया में फैला रहा है, भारत अब उस झांसे में नहीं आने वाला है। सॉरी, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं और मुझे लगता है भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट पहल की है, क्योंकि इससे और देशों को भी एक ऐसा मौका मिलेगा कि वो इस समस्या को फ्रंटली चैलेंज कर पाएं। क्योंकि बहुत समय से ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि चीन को टारगेट किया गया तो उससे बहुत नुकसान आर्थिक अर्थव्यवस्था को होगा। देखिए, अर्थव्यवस्था को नुकसान जरूर होगा, लेकिन जो चीन को नुकसान होगा वो भी, उसको भी एसेस करना जरूरी है। और जब आप एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में हैं जो कि एक जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, जो कि फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ऑर्डर के बारे में है, तो आपको वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ेंगी। तो कहीं पर भारत ने बहुत स्पष्ट संदेश ये चीन को दे दिया है कि ये जो लो कॉस्ट वाला जो फॉर्मूला है, इसका अब अंत आ गया है और भारत भी तैयार है अपनी मैन्युफैक्चरिंग को डेवलप करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटीज को, डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज को इन्हांस करने के लिए। और ये मैसेज चाहे वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हो या सर्विसेज के क्षेत्र में हो, भारत टोटल रेसिप्रोसिटी चाह रहा है, टोटल रेसिप्रोसिटी डिमांड कर रहा है। अगर वो रेसिप्रोसिटी नहीं मिलेगी तो भारत ने पूरा इंडिकेशन ये दे दिया है कि भारत नहीं चाहेगा कि जो नॉर्मल एक्टिविटीज चीन के साथ चल रही थी वो नॉर्मल चलती रहे। क्योंकि दो प्रॉब्लम हो गई हैं, एक तो चीन के साथ इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है वो अनइक्वल हो गया है। चीन, जैसा हम पहले जिक्र कर रहे थे, अपने मार्केट्स नहीं खोलता, दूसरों के मार्केट्स खुलवाने में ज्यादा जोर रहता है। तो हमको प्रॉपर एक्सेस चाहिए चीन मार्केट्स का, जहां हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज है। दूसरा, जो सामरिक समस्या है, जो हमारी अभी की जो क्राइसिस चल रहा है और जो बॉर्डर प्रॉब्लम चल रही है, और इसमें चीन हमको ये समझाता रहा पिछले कुछ दशकों से कि देखिए बॉर्डर प्रॉब्लम तो चलती रहेगी, हम ट्रेड कर लेते हैं। तो वो वाला जो एंगल है वो भी खत्म कर दिया गया है कि जब तक बाउंड्री प्रॉब्लम के लिए चीन पुरजोर कोशिश करके कोई हल नहीं निकालता है, तब तक चीन ये ना माने कि जो नॉर्मल ट्रेड रिलेशनशिप है वो चलता रहेगा भारत के साथ। और ये मैसेज चीन को चला गया है, और ये मैसेज न सिर्फ चीन को गया है बल्कि और उन देशों को भी गया है जो इस समय ऐसा महसूस कर रहे हैं कि जैसे उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है सिवाय चीन के दबदबे में आने का। तो वो जो माहौल भारत ने बदलने की कोशिश करी है, मुझे लगता है उसकी दुनिया भर में, विश्व भर में काफी सराहना हो रही है और भारत को बहुत सपोर्ट मिल रहा है। Dr. Pant, we've seen the string of pearls strategy of China, we've seen the debt trap diplomacy, and we've seen the OBOR project and the CPEC project also, which is part of OBOR. You know, have things now come to a head with the kind of expansionism that is being seen from Chinese? I think absolutely. I think what is common in all the all the issues that you mentioned, in all the Chinese projects that you mentioned, is a complete disdain for international norms and international law and international obligations. So this is, all these projects have become China's vanity projects, or Xi Jinping's vanity projects. They are projects in which China takes a very unilateral position on most of these issues, does not take into account local sensitivities, does not take into account local requirements. The projects are mapped out in Beijing and they are imposed on the rest of the world. Now, of course, for the rest of the world, for a large part of the rest of the world that needs resources, that is devoid of economic resources, these are, God sent. They will always be welcomed if there are resources coming from somewhere, without actually reading the fine print. So when you look at many of the BRI projects, what is the problem there? The BRI projects are being sustained by a treaty agreement which is highly unequal, that gives China all the all the levers in this equation, and that means that the smaller countries lose out over the long term. No capacities are being developed, no developmental prospects are being strengthened, and all that is happening is Chinese economic expansionism in a different guise. So what we are looking at now
is a recognition of this problem that is happening around the world, and a recognition that China needs to be frontally challenged. And I think India has taken a very interesting lead in this. If you recall, India was also the first country to challenge BRI in 2017 when it was outlined. India was the first country to challenge it, and now it has become common practice around the world. All the normative frameworks that India emphasized are now considered par for the course. So clearly, India's response has greater credibility. India's response has greater acceptance, and India is trying to leverage that in developing a larger global consensus around these issues. लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत और चीन के अगर राजनीतिक या कूटनीतिक संबंधों की बात करें तो दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता के लिए या क्षेत्रीय या वैश्विक विषयों पर बात करने के लिए 50 से ज़्यादा संवाद तंत्र है, कम्युनिकेशन मीडिया है, जहां पर ये दोनों ही देश बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में चीन का व्यवहार रहा है कि वो संवाद का ढकोसला तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उस संवाद को आगे नहीं बढ़ाता। क्या देखते हैं, क्या वाकई चीन भारत के साथ संवाद का इच्छुक भी है? ये जो बॉर्डर के बारे में हमने बातचीत 1981 में शुरू करी थी। 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां पर गए थे और उस वक्त एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप का गठन हुआ था और एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी। वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप 1988 और 2003 के बीच में 15 बार मिला, उस पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। उसके बाद जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे वहां पर 2003 में, उसके बाद में 2005 में एक ट्रीटी साइन हुई थी और एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव शुरू हुए थे जिसमें एनएसएस आपस में मिला करते थे। वो 22 बार मिल चुके हैं। तो 1981 से लेके 2020 तक 40 साल हम लोगों ने वार्ता ही करी है और तरह तरह के तरीके अपनाए हैं। कहीं पे भी एक इंच भी बात आगे नहीं बढ़ी है। मैप तक चेंज करने को तैयार नहीं है। 2002 में एक बार थोड़ी बातचीत हुई थी जिसमें सेंट्रल सेक्टर के मैप आपस में बांटे गए थे, वो मैप बीच पे चले नहीं। उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि जी ये बॉर्डर छोड़ दीजिए, बॉर्डर का नेक्स्ट जनरेशन देखेगा, हम तो ट्रेड करते हैं, हम इकोनॉमिक रिलेशनशिप बनाते हैं, हम ट्रेड रिलेशनशिप बनाते हैं, हम दोनों कल्चरल सिविलाइजेशंस हैं 5000 साल पुरानी, तो हमारे ये रिलेशनशिप ज्यादा जरूरी है। और आप जो है ना बॉर्डर को छोड़ दीजिए, वो बॉर्डर को छोड़ दीजिए। तो बॉर्डर को छोड़ के तो आज ये सिचुएशन आ गई है कि उन्होंने बॉर्डर पे जगह जगह पर जाकर हमको ऐसा तंग किया है। और आज से नहीं है, 2012-13 से ले लें तो 7-8 बार ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी। गोली नहीं चली थी, ये बात नहीं है कि बॉर्डर में टेंशन नहीं हुई, कई बार हुई थी। इस टाइम पे ये सिचुएशन आई, इस सिचुएशन यहाँ बढ़ चुकी है कि हमारे पास हमारी 20 कैजुअलिटी हुई है, उनकी कैजुअलिटी वो गिनना ही नहीं चाहते हैं, बात ही नहीं करना चाहते हैं। सो कहने का तात्पर्य ये है कि चाइना नहीं चाहता है कि बॉर्डर को सॉर्ट आउट करो, वो बात ही नहीं करना चाहते बॉर्डर के बारे में। बिकॉज अगर बॉर्डर सॉर्ट आउट हो गया तो वो जो इंडिया का है कैपेबिलिटी टू राइज टू बिकम इंटरनेशनल पावर, विच विल ऑल we'll get free leeway to do that. They want to control us. They want to tie us down in a issue like this. And to do that also they keep pumping up Pakistan to do things like this in the same manner. Pakistan does their bidding. So the whole issue is that they have an intention in mind. Intention is not in favor of India. And we have to accept that point of view. And then, as Dr. Pant was rightly pointing out, we have to take it in many fora. Technology is one. We have to sort the issues out about technology. We have to do economics. We have to do trade relationship. We have to also get into relationship with other nations who are also similarly perturbed about rise of China. So there is bound to be an acceptance nationally and internationally that this is a nation which is causing so much of grief to all other nations around it. Absolutely. Lieutenant General Sharma continue to be with us. Dr. Pant is also with us. Dr. Pant, we've seen in the past 6 years particularly a lot of proactive diplomacy on the part of Prime Minister Narendra Modi. Is all that giving us returns now with several countries supporting India in this hour of crisis? United States has come out with full-fledged support, and India is in continuous talks with Russia, France, Germany. Our foreign policy mandarins are in talks, and we saw how Rajnath Singh had visited Russia in these times. So would you say that all the proactive diplomacy that we saw in the past 6 years or so is now coming to fruition in this context?
Yes, absolutely, and I think often you had critics asking the question, what is Prime Minister gaining by making these visits, or why is India's foreign policy so active, when India should be concentrating on domestic issues? And I think this is a reminder to all those skeptics that foreign policy is a regular business of a state. You can't leave it for crisis management. And I think what Prime Minister has done over the last 6 years is to create this network around the world, which allows him to have not only personal relationships but strategic partnerships with countries that can be leveraged in a time of crisis. So when you look today around the world and you see the way in which countries have come and almost mostly sided with India, and saying that, look, this is a problem that is a function of China, and India is at the receiving end of this. And you see how gradually the mood across the globe is shifting in India's favor. You have to acknowledge that diplomatic achievement. Also very interesting is what has happened with Russia. See, there are some countries that have problems with China, and if they are supporting India in this critical juncture, if they are giving voice to India's problems at this juncture, that is understandable. But look at a country like Russia. Now, Russia is a strategic partner of India, has been a traditional historical partner of India. But what has been the state of affairs in recent years? Many of our strategic commentators have been pointing out, and rightly so, that Russia's priorities are evolving, that Russia is also has a very important relationship today with China. But look at the statement that Russians have made yesterday, a very subtle statement, where they are saying that they are cognizant of the realities of India and they are willing to help India in not only supplying defense technology expeditiously, but also continuing to open their defense the defense industry for India. So clearly the relationship that Prime Minister Modi has established with Mr. Putin has allowed him to engage Russia at this critical juncture and come up with an assessment of Russian foreign policy that, a country that is almost today sees itself at the center of China and Russia, has taken a position that does not really go in favor of China. So I think what we are witnessing today is an acknowledgement or a reflection of Mr. Modi's and this government's very proactive diplomatic engagement, and how that has borne fruit at a time of crisis for India, where you can look at the global discourse, you can look at the global movement of opinion in one direction, and that is favorable to India. डॉक्टर पंत, आपकी ही चर्चा से जुड़ा हुआ एक अहम सवाल है कि कहीं ना कहीं भारत ने अपने सारे ही पड़ोसी देशों को लेकर जो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति में बदलाव किया है, सबको साथ में लेकर चलने की भारत की रणनीति रही है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि पीठ पे अगर छुरा भोंका जाएगा तो भारत चुप नहीं रहेगा और हर स्तर पर, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामरिक हो, उस स्तर पर भारत आगे बढ़कर जवाब देगा। कहीं ना कहीं ये भारत का थोड़ा सा भी आक्रामक रुख होना आसपास के देशों में ही, पड़ोसी देशों में और उन देशों में जिनकी लीडरशिप को, भारत की लीडरशिप से वो कहीं ना कहीं कोई खतरा देखते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक डर का माहौल बना है या फिर पीछे हटने का माहौल बना है? देखिए, जब भी डिप्लोमेसी होती है उसमें सिर्फ अगर आप ये चाहें कि आप सबका भला बनना चाहें हर समय, उससे काम नहीं चलता। सरकारों को, देश को कभी कभी अपने हित के लिए सख्त आवाज में बोलना पड़ता है, सख्त रुख अख्तियार करना पड़ता है और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं जिनको कोर्सिव भी कहा जा सकता है। और भारत ने दोनों ही जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बैलेंस तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करी है, और मुझे लगता है उसका एक खाका हमारे नेबरहुड में खिंचा है। उसका आप एक जो रिफ्लेक्शन है वो अपने लार्जर रीजन में भी देख सकते हैं, जहां पर कई ऐसे देश थे जिन्होंने भारत के खिलाफ कभी एक रवैया इख्तियार किया था। उनको भी पता है कि भारत के साथ जो भी उनके संबंध रहे, लेकिन भारत की अपनी रेड लाइन्स हैं, वो अगर रेड लाइन्स क्रॉस होंगी तो कॉन्सिक्वेंसेस उन देशों को भी भुगतने पड़ेंगे। और वो देश जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाकर आगे चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, भारत ने उनको डेवलपमेंटल प्रोसेस से जोड़ने की पूरी कोशिश करी। आप देखिए किस तरह से बदलाव आया भारत के विदेश नीति में, भारत की नीति में बांग्लादेश से, श्रीलंका से, और किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करने की जो रणनीति बनाई थी उसमें भारत सफल हो रहा है। कई देश ऐसे हैं जो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स की वजह से इस बैलेंस को ठीक से झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारत ने जो मैसेज एक दिया है वो ये दिया है कि वो भारत दूसरे देशों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ खासकर नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी के तहत चलने को तैयार है, लेकिन रेड लाइंस भी भारत की कड़ी रहेंगी और अगर वो रेड लाइंस क्रॉस होती हैं तो भारत एक्शन लेगा।
जी, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपने बात कही है। इस बीच हमारे संवाददाता अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, जब आपसे पहले चर्चा हो रही थी, आप चीन की रणनीति की बात कर रही थी और चीन के भीतर जो तकनीक को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उस पर आप बात कर रहे थे। खासकर सोशल मीडिया पर जिस तरह वहाँ पर अंकुश है, उसका जो प्रोपेगेंडा है वो हम तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि उसने वहाँ पर अंकुश लगाया हुआ है। आप इस रणनीति को किस तरीके से देखते हैं? एक दीवार सी अपने देश के भीतर, खासकर अगर सोशल मीडिया और तकनीकों की बात करें या मीडिया की बात करें, तो एक दीवार सी बना रखी है जिसपे सेंध लगाना मुश्किल है। बिल्कुल रजनी, यहाँ पे मैं दो इंपॉर्टेंट बात को फ्लैग करना चाहूंगा। सबसे पहली कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी देश के दौरे पर जाते हैं तो वो ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करते हैं और अपनी विजिट के बारे में बताते हैं कि कैसे वो पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं, बायलैटरल रिलेशंस के लिए आगे, मतलब काफी एक्साइटेड है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द विजिट। बट जब प्रधानमंत्री 2015 में चीन गए थे तो हम इस बात को जानते हैं कि चाइना में ट्विटर तो है नहीं, तो उस समय प्रधानमंत्री ने जो चाइना का अपना सो कॉल्ड ट्विटर है जिसको वीबो बोला जाता है, प्रधानमंत्री ने उस वीबो अकाउंट पे अपना अकाउंट बनाया था ताकि पीपल टू पीपल कनेक्ट हो। मैंड्रिन लैंग्वेज में एक तरह से शी जिनपिंग को उन्होंने कहा था कि मैं आपके कंट्री में विजिट करने आ रहा हूं, मैं आप पे विजिट करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब इस वीबो अकाउंट को डिलीट कर दिया है, अपने वीबो अकाउंट को। तो आपने जैसे भी थोड़ी देर पहले पूछा कि 70 साल के हमारे रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट को बढ़ाने की बात है, तो वीबो अकाउंट को डिलीट करना ये मैसेज देता है कि अब हम इंटरेस्टेड नहीं है आपसे ताल्लुकात रखने में, क्योंकि आपका यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिकली है, सामरिक तौर पर जिस तरह से आप एस्केलेट कर रहे हैं, चीजों में टेंशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम इस तरह से जो प्राइमरीली जो टाइज होती है, पीपल टू पीपल कनेक्ट हो या फिर आपसे कनेक्ट करने की बात है, तो उसमें हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो वीबो अकाउंट को प्रधानमंत्री डिलीट कर दिया है। नंबर 2, प्रधानमंत्री जैसा कि हम जानते हैं कि अभी आप ही हाल में पूछा कि चाइना सस्ते माल सामान को बनाता है। मैं छोटी सी बात रजनी और ऐड कर दूं, चाइना केवल सस्ते माल को नहीं बनाता है, चाइना चोरी के माल को बनाता है, पेटेंट को चुराता है। आईफोन का पेटेंट चुरा के अपना एक लोकल आईफोन डेवलप करता है, व्हाट्सएप का एक रेप्लिका मिरर क्रिएट करता है जिसको वीचैट कहा जाता है, ट्विटर का एक रेप्लिका क्रिएट करता है जिसको वीवो कहा जाता है, फेसबुक का एक रेप्लिका क्रिएट कर दिया था चाइना के अंदर। तो जो चाइना है वो प्राइमरीली पेटेंट को चुरा करके अपने यहाँ पे सस्ते माल को बना देता है, और चाइना में लीगल बैटल लड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहां पे हम जानते हैं कि चाइना में किस तरह से ओपेकनेस है यहाँ पर। एक और चीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट ने यहाँ पे कई सारे इकोनॉमिक एक्शन लिए हैं चाइना के खिलाफ, जिसमें 59 चाइनीज एप्स को बैन करना हो, या फिर हाईवे प्रोजेक्ट्स के अंदर चाइनीज फर्म को, ज्वाइंट वेंचर्स को अलग रखना हो, या फिर जो BSNL जब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करेगा तो उसमें हुआवे, ZTE या कोई भी चाइनीज बेस्ड हार्डवेयर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके पहले भी आज आप देखिए कि एंटी चाइना सेंटीमेंट अगर सरकार ने कदम नहीं भी उठाए हुए थे, तो आज एंटी चाइना सेंटीमेंट भारत में इतना ज्यादा, मैं कई ई-कॉमर्स वेबसाइट को सर्च करा था जो भी हमारे भारत के अंदर है, लोग कोई भी मोबाइल फोन लेने से पहले, कोई प्रोडक्ट लेने से पहले आप इंक्वायरी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ रहे हैं कि इज दिस प्रोडक्ट चाइनीज, ये प्रोडक्ट कहाँ का आया हुआ है, कहाँ क्या चाइनीज प्रोडक्ट है। वो महंगा प्रोडक्ट खरीदने को तैयार है आज की तारीख में, 130 करोड़ के जो भारतीय जो जनता है, लेकिन वो चाइनीज प्रोडक्ट से कन्नी कटाना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा एंटी चाइना सेंटीमेंट आज भारत के अंदर देखने को मिल रहा है। तो जो साफ मैसेजिंग देखता है कि भारत अब चाइना के साथ इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर बातचीत करने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अगर हमारे 20 जवान शहीद होते हैं, ये उनकी जान की कीमत हमारे इन्वेस्टमेंट या सस्ती टेक्नोलॉजी से नहीं लगाई जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पर चाइना को जाता हुआ दिखाई दिया है। 130 करोड़ जो भारतीय, वही एक तरह से बॉयकॉट करने को तैयार है चाइनीज प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये बिल्कुल बड़े साफ शब्दों में एक तरह से भारत का मैसेज, इन कुछ बड़े पॉइंट्स को अगर आप क्लब करने की कोशिश करेंगे तो आप यही पाएंगे कि चाइना जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना रहा था, इकोनॉमिक एक्सपेंशन करना चाह रहा था, भारत ने उसको बहुत बुरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि ऐसे कई सारे इकोनॉमिक एक्शंस आप देखेंगे जिसमें जो हमारे घरेलू जो निवेशक है, इंडस्ट्रीज है, इनको बढ़ावा मिलेगा, इनके लिए काफी पॉलिसी फ्रेंडली बनाई जाएंगी ताकि छोटे निवेशक, छोटे MSME उद्योग ये एक तरह से डेवलप कर सके, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ा सके, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, खास करके जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट की यहाँ तक बात होती है, उसको कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्करेजमेंट यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है जहां तक भारत की स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर। Absolutely. So the boycott Chinese products sentiment is pan-India, and it is only building with time. Lieutenant General Sharma continues to be with us. I understand, Lieutenant General Sharma, if you're with us, we've heard in the past about the possibility of a two-front war. How prepared is India for one? Okay. Yeah, see, it has been spoken about, a two-front war has been spoken about for a very long time. And undoubtedly, it will stretch us to fight two enemies, two adversaries. One
China, which is a very large army and a very largely sophisticated force. And then, of course, there is Pakistan. So I think presently we do have the capability of handling both the adversaries together, but we need to work much more. Because now it has come to light that once the Chinese are belligerent and aggressive on our borders, there is always Pakis who will do some kind of needling, as some reports say that they have moved some forces across, maybe true or not true. So we have to take cognizance of the fact that while if we have a major conflict with the Chinese, which we hope we don't have, nobody wants a conventional war. But if we have a conventional war with Chinese, the Pakistanis would try to act difficult with us, and we'll have to handle them. So we'll have to give a little more impetus towards better preparations on this score in times to come. Yes, absolutely. Dr. Pant, we understand you have to leave, but before you leave, just one question to you. China has responded today saying that artificial blocks to bilateral cooperation would harm India's interests and that the two countries should work together to uphold peace in their border region. Wouldn't it be appropriate for China to do some self-introspection on what really has led to this impasse in the border areas rather than lecturing India into what to do? Yes, absolutely, and I think we are way past that stage where we or Indian government or any serious person in India would take cognizance of what China is saying. I think what we now need to see is what is happening on the ground, and on the ground, Chinese have not taken a decision to either go back or in some ways to restore the status quo ante that India has been demanding. And I think this creates this perception that China is not serious about de-escalating the crisis. As far as India is concerned, India's message has been consistent. It has been very clear that the ball is in China's court. If China wants to take this relationship forward in a positive direction, then China has to initiate actions that can give greater confidence to India and to Indian policymakers that China means business with India, that China means that China wants positive relationship with India. Unfortunately, nothing of that sort has happened. All what we have heard from China are either rhetoric, or what we have heard is some kind of trying to explain their actions with some legalistic and diplomatic jargon, which clearly is no longer cutting much ice in India. So what we now need is action on the ground, and I think Indian Prime Minister during his visit today laid the marker very, very clearly that it is Chinese expansionism that is at fault, and therefore that problem needs to be resolved first. And unless that Chinese change their mindset, there is not going to be a long-term solution to this problem. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हर्षवर्धन पंत हमसे जुड़ने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए और भारत और चीन संबंधों पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल पीके सहगल हमसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा, आपसे एक सवाल है, अगर हम लीडरशिप की बात करें, वैश्विक स्तर पर बड़े ही ध्यान से भारत के हर कदम को देखा जा रहा है पूरे ही विश्व में, भारत चाइना के संबंधों की बात करें तो इस दौरान जो लीडरशिप आप देख रहे हैं रणनीतिक मोर्चे पर, क्या देखते हैं? एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री हैं जो खुद लेह में जाकर उन सैनिकों की पीठ थपथपाते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए साहस दिखाया है, उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए जान गंवाई है। दूसरी तरफ एक लीडरशिप वो भी है जो अपने उन शहीद सैनिकों का नाम नहीं बताती है देश की जनता को जिसने देश के लिए जान दी है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेना का असंतोष है वो चीन पर क्या भारी पड़ेगा? ये मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि उनके में एक भावना है कंट्री के अंदर कि अगर ज्यादा कैजुअलिटीज बताई जाए और ज्यादा डैमेज दिखाया जाए तो शायद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पे असर पड़ सकता है और इंटरनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। उनको अपनी इंटरनल डिस्टर्बेंस से इतना ज्यादा खतरा है चाइना को, बिकॉज वो डेमोक्रेसी नहीं है, इतना ज्यादा खतरा है कि वो कभी भी ये बातें बताते नहीं है कि हमारे विपरीत क्या चल रहा है। और इसी कारण से उन्होंने टेक्नोलॉजी को भी क्लोज करके रखा है। उनकी टेक्नोलॉजी अलग है, वो बाहर का इंफॉर्मेशन फ्लो को रोकते हैं और जो है वो बताते हैं ताकि लोगों को लगे सब ठीक चल रहा है। ऐसा कितनी देर तक चल सकता है? आपको मालूम है हांगकांग में तकरीबन 1 साल होने को आया है, वहां पे राइट्स चल रहे थे
और चाइना में भी हमको कई बार सुनने को मिलता है कि थोड़ा थोड़ा राइट्स चलते हैं। तो ये कब तक छुपाएंगे? उनकी जिनके डेथ हुई है, जो वहां पे गलवान में जो हताहत हुए हैं, उनकी फैमिली से पूछेंगे हमारे भाई बंधु कहाँ गए, और ये उनके वेटरन से पूछते हैं। कल परसों आई थिंक वॉशिंगटन पोस्ट में इस पे एक आर्टिकल भी आया था, उसमें लिखा है कि उनके वेटरन्स ने पूछना शुरू किया है चाइना में कि हमारे जो अपने लोग हैं कितने डेथ हुई है हमको बताएं। पर सी एक मूवमेंट शुरू होगा, आज नहीं कल एक मूवमेंट शुरू होगा देश के अंदर, जिसमें लोग वही सवाल पूछेंगे जो हमारे देश में हम लोग पूछते हैं, हमारे पॉलिटिशियन पूछते हैं, ऑपोजिशन वाला पूछते हैं। सच ये एक अच्छे देश की निशानी है कि तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं। उनके देश में ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है, और यही कारण है कि एक वो डरते हैं कि हमारे देश में रेवोल्यूशन आ सकता है। Lieutenant General Sharma, Prime Minister has motivated the already motivated Indian soldiers. He's spoken about the bravery of the Jawans, spoken about how the sacrifice of the 20 soldiers in the Galwan Valley was an epitome of bravery. In these circumstances, what more should India be doing as far as the military is concerned? Okay, let's be clear that we have the experience and the prowess to fight border wars to a great extent, because we have shown strength from 1948 capture of Pirkanti, or Hajir later on, or Kargil subsequently, or Rizangla in 62, Welong in 62. If you see the history of warfare, Indian armed forces have shown tremendous amount of strength in high altitude warfare, and we have the capacity to handle it. There may be shortfalls in many other forms of warfare which are coming up in 21st century. Maybe General Sehgal will be able to speak about air defense subsequently, because he's a master of that. Then there are other issues involved in technological warfare, which Chinese have taken great steps. So we have to now elevate ourselves in many other forms of warfare which needs to be addressed. And I think the government is seized of the issue that there are issues that need to be built up. That's why you see dramatic shift in the course of last few days as to how we can address many other issues. So I think border wars, I think we have tremendous strength in the country. And on many other issues we need to work a little more. लेफ्टिनेंट जनरल शर्मा, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय भाषा का है। चीन की जो भाषा है उसके साथ उसके बारे में जानना या वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, वहाँ नौकरियाँ करना इतना आसान नहीं है। चीन ने कहीं ना कहीं भाषा को भी अपना हथियार बनाया है। अगर पड़ोसी देशों में सेना की ही बात करें तो जो पड़ोसी के मुल्क हैं जिनकी सैन्य संबंध है हमारे साथ, कहीं ना कहीं भाषा एक है या बातचीत की जा सकती है, लेकिन चीन ने भाषा के स्तर पर जो घेराबंदी की है उसे तोड़ना भारत के लिए मुश्किल हो रहा है। क्यों हम हिंदी में बात करेंगे? आप और हिंदी में बात कर रहे हैं, हमको कोई कष्ट है? अगर हमारे प्रधानमंत्री जाके हिंदी में बात करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, हमको गर्व लगता है कि हमारी अपनी भाषा है। हमारे पूर्व क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी इतनी अच्छी संस्कृत में भाषण दिया करती थी। उनकी मैंडरीन है, कैंटनीज है, तो अपने पास रखिए। हमारी भी भाषाएं हैं, हमारी भाषाएं भी 5,000 साल पुरानी है। हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी भाषा में बात कीजिए, हमको अपनी भाषा की स्ट्रेंथ पे विश्वास है। Yeah, absolutely. General Sharma, you've spoken in the past about our preparedness for a two-front war and how motivated our soldiers are and how they have shown that even in very, very difficult terrain, they have the capacity to fight and to win. Has the appointment of the Chief of Defence Staff that has happened around 6 months back also come at an opportune time for India if we look at it in retrospect, for greater coordination between the three services? Okay, it's a valid question. The Chief of Defence Staff has come at an opportune time this year, and we've been asking for Chief of Defence Staff for a very long time. It was written in the Kargil Review Committee. It's taken 20 years to come into this form. However, it is an evolving issue in which there is much to be done for jointness. It's not that one appointment alone. It's a question of the services within the army or within the three services and within the government whole as all combining together to fight one war. And for that, there is much to be done. And I'm sure the Chief of Defence Staff and the Department of Military Affairs is seized of the issue
as to how we get the jointness between three services and get into one manner. And I think he must have been given timelines to do so. So there is a excellent beginning made, but there is a large path to be crossed hereafter before we can say we have reached. So there is a transition on, and the transition is not going to be one day. It will take time. जी, बदलाव आने में वक्त लगता है और वो बदलाव अपना वक्त लेगा। लेकिन आज पीएम के लेह दौरे की बात कर लेते हैं। अपने लद्दाख दौरे में पीएम मोदी लेह के अस्पताल पहुंचे, जहां गलवान घाटी हिंसा में घायल सैनिकों का हालचाल उन्होंने लिया। यहाँ पर उन्होंने उन सैनिकों से मुलाकात की जो 15 जून को गलवान में हुई हिंसा में घायल हो गए थे। अस्पताल में पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित भी किया। तो उन जवानों को उससे मुलाकात की है जो घायल हुए थे गलवान की चीन की तरफ से की गई हिंसा में, और उनका मनोबल बढ़ाया है। और उन्हीं का मनोबल नहीं बढ़ाया, पूरे देश का मनोबल बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लेह में पहुंचकर लेह की जनता का भी मनोबल बढ़ाया है और पूरे देश को कनेक्ट करने में, देश को जोड़ने में, देश के साथ संवाद स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है लेह के मंच से ये साबित किया है कि सारा भारत एक है। अपने भाषण में बार बार प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के अदम्य साहस की बात की है और जिन भौगोलिक स्थितियों में भारतीय सेना के जवान काम कर रहे हैं उनकी बात की है। इस बार क्या मुझसे पूछ रहे? आज आप सब अगर आप इस बार मेरे से पूछ रहे तो प्रधानमंत्री का जो आज भाषण था बहुत ही अहम था, बहुत ही महत्वपूर्ण था। खासतौर से उन्होंने उन जवानों को खासतौर पे कहा कि पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, 135 करोड़ लोग आपके पीछे खड़े हैं। हमको आपकी एकता, अखंडता और अब देश की आबरू को, जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल हैं, अस्पताल में हैं, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है। और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी शक्तियों और शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं। और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है,
पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ हो और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम। इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। You were looking at Prime Minister Narendra Modi, who was with those Jawans who were injured in the Galwan Valley clash on the 15th of June, where the Prime Minister lauded the bravery of the injured Jawans and said that you've given a befitting reply to the adversary. You have inspired Generation Next. Your bravery will be a source of inspiration for the times to come. He said that I feel energized and inspired after meeting you. I salute the mothers who've given birth to you. India has never bowed before any power in the past. It will not bow in the future either. And the meaning of Atmanirbhar Bharat becomes even more important in the present context. He spoke about how India has resolved to become self-reliant in these circumstances. So Prime Minister Narendra Modi boosting the morale of the forces. Earlier he had gone to Ladakh, where he had addressed the soldiers, and then he visited the injured soldiers in the Army General Hospital in Ladakh. Several soldiers were injured in the Galwan Valley clash with PLA soldiers on the 15th of June. 20 Indian soldiers had attained martyrdom in that clash. So Prime Minister Narendra Modi lauding the bravery of the Jawans, even during the earlier address that he made to the Jawans there. He had spoken about the bravery of the Jawans and said that India trusts their bravery, India trusts their resolve to secure India's borders, and India has full confidence in their capabilities and in their valor. Major General retired Shekhar Sinha is now joining us. General Sinha, you've seen these visuals playing out on our screens. Prime Minister earlier addressed soldiers in Ladakh, and then he visited the injured soldiers in the Army General Hospital. You've heard what he's had to say to these soldiers. What thoughts cross your mind at this juncture? Firstly, thank you very much. I am Vice Admiral Sinha. Yes, I saw the pictures, and I think it's a big message for the army, because they are fighting in very adverse weather conditions, and Prime Minister himself having come and seen them in the hospital and given them shabash. It does a lot of morale to the army, and it also tells them that if and when there is a requirement, he will always fall back on army. He has a lot of trust. So I think coming from a Prime Minister, it's a great thing. वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा, अगर बात करें आज के इस दौरे की, जहां पर जाकर हमारे जननायक ने हमारे जवानों की पीठ थपथपाई है, उनसे मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई करी है। जब कोई जवान सेना को ज्वाइन करता है, उससे जुड़ता है, तो उसके भीतर एक देशभक्ति का जज्बा तो अपने आप ही भर जाता है, और ये जो प्रोफेशन है वो प्रोफेशन से बढ़कर कुछ हो जाता है। लेकिन जब खुद प्रधानमंत्री या देश के नायक आकर इन जवानों की हौसला अफजाई करते हैं, वो पल कैसा होता है? आप सेना से जुड़े हुए हैं, आप इस पल को किस तरीके से देखते हैं पूरे ही देश की जनता के लिए? जी, ये तो हमारे पूरे देश की जनता के लिए भी एक आह्वान है कि आर्म फोर्सेस को जो लड़ाई करते हैं, जो अपने जान गंवाने के लिए तैयार रहते हैं, उनका ये महत्व है कि वहाँ भारत का प्रधानमंत्री जाकर खुद उनसे मिलता है। तो ये समझिए कि एक तरह की एक संवेदनशीलता को जताता है, और ऑल्सो ये भी बताता है कि भारतवर्ष बड़ा कृतज्ञ है उनके लिए। तो ये जो नौजवान है भारतवर्ष के, ये उनके लिए ये मैसेज देता है कि देखिए, यह एक बहुत ही ऐसा काम है जो कि देश के लिए है, बिल्कुल देश का धर्मरक्षक है, देश के कॉन्स्टिट्यूशन की ये लोग रक्षा करते हैं। तो वो उनको एक आह्वान करता है कि आप भी भविष्य में सेना को
नौसेना को, वायुसेना को अपना एक प्रोफेशन चुने। जी, और आज जब लेह के आर्मी हॉस्पिटल में जाके प्रधानमंत्री ने उन घायल जवानों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की जिन्होंने गलवान घाटी में साहस का परिचय दिया था, उस क्या कहा उन्होंने, आइए उसको फिर से सुन लेते हैं। साथियों, मैं आज आप सबको नमन करने के लिए आया हूं, क्योंकि जिस वीरता के साथ आपने लड़ाई लड़ी, और मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि जो वीर हमें छोड़ के चले गए हैं वे भी ऐसे ही नहीं गए। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया। शायद आप घायल हैं, अस्पताल में है, इसलिए शायद आपको अंदाज नहीं आता होगा, लेकिन 130 करोड़ देशवासी आपके प्रति बहुत ही गौरव अनुभव कर रहे हैं। आपके इस साहस, शौर्य हमारी पूरी नई पीढ़ी को प्रेरणा दे रही है, और इसलिए आपका ये पराक्रम, आपका ये शौर्य और आपने जो रक्त बहाया है वो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारे देशवासियों को आने वाले लंबे अरसे तक प्रेरणा देता रहेगा। और आज जो विश्व की स्थिति है, वहां जब ये मैसेज जाता है कि भारत के वीर जवान ये पराक्रम दिखाते हैं, ऐसी शक्तियों के सामने दिखाते हैं, तब तो दुनिया भी जानने को बड़ा इच्छुक रहती है कि नौजवान है कौन, उनकी ट्रेनिंग क्या है, उनका त्याग कितना ऊंचा है, इनका कमिटमेंट कितना बढ़िया है। आज पूरा विश्व आपके पराक्रम का एनालिसिस कर रहा है। मैं आज सिर्फ और सिर्फ आपको प्रणाम करने आया हूं, आपको छू करके, आपको देख करके एक ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, एक प्रेरणा लेकर के जा रहा हूं, और हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, दुनिया की किसी भी ताकत के सामने न कभी झुके हैं, न कभी झुकेंगे। और ये बात मैं बोल पा रहा हूं आप जैसे वीर पराक्रमी साथियों के कारण। मैं आपको तो प्रणाम करता हूं, आपको जन्म देने वाली आपकी वीर माताओं को भी प्रणाम करता हूं। शत शत नमन करता हूं माताओं को, जिन्होंने आप जैसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है, पाला पोसा है, लालन पालन किया है और देश के लिए दे दिया है। उन माताओं का जितना गौरव करें, उनको जितना सर झुका करके नमन करें, इतना कम है। फिर एक बार साथियों, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएं, स्वास्थ्य लाभ हो, और पुनश्च हरिओम, पुनश्च हरिओम, इसी मिजाज के साथ आओ हम सब मिलकर के चल पड़ेंगे। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो प्रधानमंत्री